Exam dost, success ka host. Sainik na vodaya mein topmost. Hello and welcome everybody. Today we are going to learn a very important chapter, the water and air pollution. Water and air are two basic things that all living beings need to survive. It goes without saying. But unfortunately, our water and air are becoming polluted because of human activities. Pollution not only harms the environment but also affects our health, plants, animals, and the quality of life on earth. In this topic, we will understand what is the meaning of water pollution, how water and air gets polluted, the effects of pollution, and what we can do, the measures to reduce water and air pollution. Water and air, these are the gifts of nature, and if we pollute them, we harm ourselves. By understanding the causes and effects of pollution, we can all work together to keep our environment clean and healthy. Let's learn this chapter with full attention and become responsible citizens. Taj Mahal in Agra, we know, is one of the 7 wonders of the world. But now it is quite disappointed to hear that the beauty of this monument in white marble is being threatened by air pollution in the area surrounding the Taj. बात ताजमहल की हो रही है, जहां वो बता रहे हैं कि ताजमहल की लिस्टिंग वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में है, लेकिन अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन, कहाँ पर, सराउंडिंग एरियाज ऑफ ताजमहल, इसकी वजह से इस मॉन्यूमेंट की जो ब्यूटी है, इट इज़ गेटिंग डिटीरियोरेटेड, धीरे धीरे कम होती जा रही है. क्यों होती जा रही है? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर विच इज सराउंडिंग दिस मॉन्यूमेंट. नाउ रिमेंबर, आवर एल्डर्स, हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, they talk about the clean water and fresh air that was available in their times. वो बताते हैं, आजकल हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, एल्डर्स हैं, वो बताते हैं कि उनके समय में कितना फ्रेश एयर उन्हें मिलता था. And nowadays, if you see, every other day the media regularly reports on the falling quality of the environment, whether it is the pollution in water, whether it is the pollution in air, and there is a new concept going on of air quality index. So we have started getting the air quality index also for different cities, for different countries, which reflects the level of pollutants in a particular region. तो बात यह है कि पहले के कुछ सालों पहले, मे बी few decades ago, our elders, they were always रिमेंबरिंग अस अबाउट देयर टाइम, कि उनके समय पे एयर कितना क्लीन था, वाटर कितना क्लीन था, और आजकल वो कंपैरेटिव लेवल नहीं रह गया. वी आवर सेल्फ फील द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर इन आवर लाइफ्स. और पेरेंट्स की बताने की बात नहीं है, आजकल तो इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस. समर सीजन्स में देर इज़ प्राइवेट वाटर सप्लाईज टू मैनी टॉप सिटीज़, इवन इन इंडिया. जमशेदपुर and Bangalore, these are the 2 cities where the water is actually a problem. There is a scarcity of water. The number of people suffering from diseases of the respiratory system, for example, is trying to imagine a time when clean air and water may
नो लॉन्गर बी अवेलेबल। तो बात यहाँ पर ये बताई जा रही है कि कुछ समय पहले से अगर आप कंपेयर करें तो वाटर की भी जो क्वालिटी है वो थोड़ी लो हो गई है, एयर की जो भी क्वालिटी है वो भी थोड़ी लो हो गई है, जिसकी वजह से अब सोसाइटी में एयर क्वालिटी ख़राब होने की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स कॉमन हो गई हैं और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सोसाइटी में बढ़ रही हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में शायद क्लीन एयर, क्लीन वाटर ये भी मिल पाना मुश्किल होगा, ये भी शायद हमें अवेलेबल नहीं हो पाएगा। Now the point here is that both air and water are very critical or vital for our survival. We can survive for some time without food. बिना खाने के तो हम we can manage some time, but we cannot survive even for a few minutes without air. Very important point. एयर के बिना तो हमारा कुछ मिनट से आगे भी हम नहीं चल पाएंगे। And these simple facts tell us how important clean air is to us. तो ये यहाँ पर हमें ये बात बताई जा रही है कि वाटर सबसे ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल तो एयर है। और अगर हम एयर और वाटर में पॉल्यूटेंट्स मिलाने लगें, एडिशन ऑफ सब्सटेंस टू द एटमॉस्फेयर विच मॉडिफाइज द एटमॉस्फेयर, ऐसे अगर हम सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में डालें जिससे हम एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई करें, जो उसकी कॉम्पोजिशन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर हम उसे कंटामिनेट करें, कंटामिनेट करना मतलब पोल्यूट करना होता है, उसके अंदर इंप्योरिटीज मिक्स करना। व्हेन एयर इज कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंस which have a harmful effect on both living and non-living, it is called air pollution. एयर पोल्यूशन की को डिफाइन किया गया है, एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को अगर हम डिस्टर्ब करें, उसमें कंटेमिनेशन करें, उसमें इम्प्योरिटीज ऐड करें जिसकी हार्मफुल इफेक्ट हो सकती है लिविंग पर भी नॉन लिविंग पर भी, दोनों पर देखेंगे कैसे, लिविंग पर और नॉन लिविंग दोनों पर। तो इसे हम एयर पोल्यूशन, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ air pollution. The substance which contaminate the air are called air pollutants. Contaminate means pollute करना, प्रदूषण लाना, प्रदूषित करना। तो ऐसे substance जो एयर में कंटेमिनेशन लेके आएंगे उन्हें एयर पॉल्यूटेंट। समटाइम्स सच सब्सटेंसेज may come from natural sources like smoke and dust arising from forest fires or volcanic eruptions. So air pollutants can come from a natural source which is the smoke and dust arising from जंगल में जो आग लग गई या volcanic eruption से जो dust उठ रहा है, smoke उठ रहा है, that can be a reason of air pollution. That is one. Pollutants are also added to the atmosphere by certain human activities. This is important to check because natural phenomena, it's sometimes beyond our control. Human activities. Say the source of air pollutants are factories, very important, power plants, automobile exhaust, two-wheeler, four-wheeler, trucks, buses, burning of firewood and dung cake. So these are the reasons for air pollution due to the human activities, which requires a check. Now if you look at the air pollution done by a factory, just look at this picture. This is, you can see the outlets of factories and the amount of smoke coming out of the factories. Another major is vehicle. They also produce high level of pollutants. What are the pollutants produced by vehicles? Question पूछा जा सकता है. Most important, सबसे जो dangerous gas है carbon monoxide. Higher classes you will study a detail in about carbon monoxide, its bonding, its structure, properties. Second is carbon dioxide. This is another thing you are going to. So these are the two gases: carbon monoxide, CO, carbon dioxide, CO2. Nitrogen oxides, very dangerous, and smoke. Carbon monoxide is produced from incomplete burning of fuels such as petrol and diesel. Previous years में काफी पूछा गया ये क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है. आंसर इज इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ ऑयल, या इनकम्प्लीट बर्निंग का दूसरा नाम कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स. व्हाट फ्यूल्स? पेट्रोल है, डीजल है, इनका इनकम्प्लीट कंबशन. वुड भी आएगा इसमें, बट हम यहाँ पर व्हीकल के
प्रोड्यूस होने वाले पॉल्यूटेंट्स की बात करें। बट इनकम्प्लीट कंबशन अलग अलग फ्यूल्स का हो सकता है, यहाँ पर पेट्रोल और डीजल का अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज़ अ पॉइजनस गैस, इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक ऐसा पॉइंट रहा जिस पर साल दर साल क्वेश्चन आए। साइंस में अगर आप देखेंगे, जनरल नॉलेज में देखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड पर एक क्वेश्चन हमेशा रहा। अब वो अलग अलग तरह का रहा, कभी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ब्लॉक करने पर रहा, कभी इनकम्प्लीट कंबशन पे रहा, कभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया कि एक रूम में आग जलाकर सो जाओगे तो कौन सी गैस से मर जाओगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। पर एक क्वेश्चन इस पर हमेशा रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पर जो क्वेश्चन है वो कंबशन एंड फ्लेम टॉपिक से है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के एज अ फायर एक्सटिंग्विशर प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है। और इन जनरल कार्बन डाइऑक्साइड ओवरऑल हमारे सिलेबस पे छाया हुआ है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में भी कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो प्रोड्यूस होता है उसके में भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की बात चल रही, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। पर हाँ, इन पर दोनों भाई हैं, इन दोनों पर एक क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्जाम में बनेगा। फर्दर दिस इज द एयर पॉल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, इफ द व्हीकल्स registered in Delhi are lined up one after the other, the total length of would be nearly equal to the combined length of two longest rivers in the world, Nile and Amazon. They are saying कि दुनिया के जो सबसे दो longest river हैं, नाइल in Africa and Amazon in South America, अगर वर्ल्ड की दो longest river को हम ऐड कर दें तो जो टोटल लेंथ आएगी दैट इज इक्वल टू द टोटल लेंथ ऑफ ऑल द व्हीकल्स। अगर हम सारे दिल्ली में जितने भी व्हीकल्स हैं रजिस्टर्ड, अगर उन्हें एक लाइन से खड़ा कर दें तो उसकी जो टोटल लेंथ होगी वो टू लॉन्गेस्ट रिवर के लेंथ से ज़्यादा होगी, या उन्होंने बोला नियरली इक्वल टू कंबाइंड लेंथ, दोनों के बराबर हो जाएगी। सो दे आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली अलोन। पूरे इंडिया की तो फिर बात ही अलग हो जाएगी। दैट इज़ वाई दिल्ली इज ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया बट मे भी हो सकता है इस पर कुछ ना कुछ एक आधा कुछ क्वेश्चन बना दे, पर क्योंकि बहुत बोल्ड में दिया है टेक्स्ट बुक में तो शायद डायरेक्टली नहीं पूछेंगे। और मोर ओवर नाइल और साउथ अमेरिका की अमेजोन का इसका बहुत ज़्यादा एडवांस कोई चीज़ नहीं है, देयर आर बेटर थिंग्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेचुरल वन। इसके अलावा और क्या है, अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर। कई बार आपने देखा है विंटर सीजन में स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स एक थिक मोटी फॉग जैसी लेयर आ जाती है। फॉग मतलब आप समझो धुंध जैसी, थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है एटमॉस्फेयर। दिस इज स्मॉग, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉग बोलते हैं सुबह सुबह का जो, विच इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। क्वेश्चन पूछा गया पहले स्मॉग का, व्हाट इज द स्मॉग मेड अप ऑफ, स्मोक एंड फॉग, दोनों को मिलाकर टर्म बनाया स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग। स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विद अदर एयर पॉल्यूटेंट्स एंड फॉग टू फॉर्म स्मोक। स्मोक कैसे बनता है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है जब वो बाकी एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ मिलेंगे तो स्मॉग, मेनली स्मोक प्लस फॉग। नेक्स्ट, द स्मॉग कॉजेज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज सच एज एस्थमा, कफ एंड वीजिंग इन चिल्ड्रन। बच्चों में वीजिंग की प्रॉब्लम होगी, एडल्ट्स में एस्थमा होगा, कफ होगा, अर्लियर एज में भी ये हो सकता है। स्मॉग से ये डिजीज हो सकती है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। मैनी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। इंडस्ट्री की भी अब बात हो रही है, इंडस्ट्री की वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज, दे आर मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट्स। जो भी इतने भी रिफाइनरीज हैं जहाँ पर क्रूड जो रॉ फॉर्म होता है पेट्रोलियम का, उसे जब हम रिफाइन करते हैं तो बहुत सारे गैसियस पॉल्यूटेंट्स वहाँ से निकलते हैं। क्या क्या निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दीज आर द टू मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, सबसे ज़्यादा डेंजरस है ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल इन पावर प्लांट। तो सल्फर डाइऑक्साइड डेंजरस वन, ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है जब पावर प्लांट्स में कोयला जलाया जाता है। कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल इन पावर प्लांट, पावर प्लांट पावर जनरेट किया जाता है, तो जब कोयला हम जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड हमें हार्मफुल गैस है, ये रिलीज होती है। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज। इससे किस तरह की बीमारी हो सकती है, रेस्पिरेटरी, सांसों की बीमारियां हो सकती हैं, और परमानेंट लंग डैमेज भी इससे हमें हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदर काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। रिपीटेडली क्वेश्चन आया CFC के ऊपर, शॉर्ट फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एंड एरोसोल स्प्रेस।
CFC damage the ozone layer of the atmosphere. Recall that the ozone layer protects us from harmful ultraviolet rays of the sun. तो ये जो CFC हैं किसको डैमेज करते हैं? ये ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं. ओजोन लेयर क्या करती है? हमें स्किन कैंसर होने से बचाती है. कैसे? सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को वो एब्जॉर्ब कर लेती है और ओजोन लेयर से आगे उसे आने नहीं देती है. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओजोन होल. और हमने इसका यूज इतना ज़्यादा कर दिया है कि इस ओजोन लेयर में एक छोटा सा होल हो चुका है. दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट ओजोन होल. So what are we doing to save it? We are using less harmful chemicals in place of CFC. तो अब हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, जो कि डायरेक्ट क्या करते हैं, ओजोन लेयर को ब्रेक कर सकते हैं, दे डिसइंटीग्रेट द ओजोन लेयर. तो अब हमने CFC को यूज करना कम कर दिया है. 17 सितंबर इज द ओजोन डे. क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पूछा जाने के चांसेस भी कम है क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, बट आप अपने जानिए. 17 सितंबर इज द ओजोन डे. ओजोन को मेजर करने की यूनिट होती है डॉब्सन. यूनिट ऑफ ओजोन लेयर की जो मेंशन करने की, ओजोन को जो, ओजोन इज व्हाट, O3, तो इसको जो मेजर करते हैं हम यूनिट है डॉब्सन. Further, they are saying that automobiles which burn diesel and petrol also produce tiny particles which remain suspended in air for long periods. अब हमने देखा है कि जब हम ऑटोमोबिल्स रन करते हैं तो उससे भी हम डीजल पेट्रोल बर्न करते हैं और उससे भी कई सारे पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं जो कि हवा में बहुत देर तक रह जाते हैं. सस्पेंड होना मतलब हवा में वो एयर में जाकर एटमॉस्फेयर में वो रह जाते हैं. दे रिड्यूस विजिबिलिटी, जो थोड़ा धुंधलापन है ये इसी की वजह से होता है. व्हेन इनहेल्ड दे कॉज डिजीजेस. जब अगर यही सांस हम लेंगे, यही एयर हम अंदर इनहेल करेंगे, डिजीजेस होंगी. सच पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक स्टील मेकिंग एंड माइनिंग. दीज आर द टू मोस्ट हार्मफुल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. स्टील मेकिंग में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी निकल रहे हैं, सल्फर ऑक्साइड्स भी निकल रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल रहा है. सबसे डेंजरस प्रोसेस होती है. और सेकेंड इज माइनिंग. माइनिंग में भी यू विल रिसीव कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल काइंड ऑफ गैसेज विल कम आउट. पावर प्लांट्स गिव आउट टाइनी ऐश पार्टिकल्स विच ऑल्सो पोल्यूट द एटमॉस्फेयर. पावर प्लांट देखा आपने, धुएं के साथ साथ छोटे छोटे ऐश पार्टिकल्स भी निकलते हैं जो एयर को हमारे पोल्यूट कर रहे हैं. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द थ्रेट, एंडेंजर्ड सिचुएशन. ओवर द पास्ट 2 decades, 20 साल, India's most famous tourist attraction Taj Mahal located in Agra has become a matter of concern. अब इस पॉल्यूशन की वजह से हमारा जो 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ताजमहल, अब वो इसकी भी ब्यूटी क्या हो रही है. सी दैट एक्सपर्ट्स हैव वार्नड दैट पॉल्यूटेंट्स इन एयर आर डिस्कलरिंग इट्स वाइट मार्बल. वी नो इट इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल. और इस एयर पॉल्यूशन की वजह से वहाँ के जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो हवा में सस्पेंड हुए हैं, सब हवा में मिल चुके हैं, उसकी वजह से हमारा जो वाइट मार्बल है डिस्कलर हो रहा है, वो फेड हो रहा है उसका. सो इट इज़ नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट गेट अफेक्टेड बाय पॉल्यूटेड एयर बट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज, दे आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड. उससे ये भी अफेक्ट हो. आपने देखा होगा बिल्डिंग में भी आप अपने पेंट वगैरह कराते हैं तो बहुत जल्दी वो पेंट जो है फेड होने लग रहा है, उसका कलर डिस्कलर हो रहा है. क्यों? उसके ऊपर डस्ट जम रही है, एयर में पॉल्यूटेंट्स हैं हर जगह. तो इसकी वजह से लिविंग थिंग्स तो अफेक्ट हो ही रहे हैं, हमें तो बीमारियां हो ही रही हैं, साथ साथ में जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है उसे भी हम खराब कर रहे हैं. द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा लाइक रबर प्रोसेसिंग, automobile, chemicals and especially the Mathura oil refinery have been responsible for producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. जो बात बता रहे हैं कि ताजमहल के आसपास काफ़ी सारी फैक्ट्रियाज हैं, आगरा के आसपास, आगरा में ही काफ़ी सारी फैक्ट्रियाज हैं. रबर प्रोसेसिंग करते हैं तो रबर प्रोसेसिंग में पूरा बर्निंग प्रोसेस वगैरह होता है. ऑटोमोबाइल के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी सारे केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, एयर में गैसेज रिलीज़ हो रहे हैं, हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जा रहे हैं. केमिकल फैक्ट्रीज हैं. मथुरा ऑयल रिफाइनरी, इट्स हार्डली 50-60 किलोमीटर अहेड ऑफ आगरा ताजमहल. नाउ दीज आर रेस्पॉन्सिबल. अभी ये कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं? ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, दोनों ही डेंजरस गैसेज. ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड दे आर प्रोड्यूसिंग. क्या डेंजरस है इनमें? दीज गैसेज रिएक्ट विथ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. दो डेंजरस एसिड बनाते हैं. ये कैसे बनाते हैं? जब ये गैसेज एयर में जाकर मिक्स होते हैं तो एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर से, वी नो दैट एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है,
ये वाटर वेपर के साथ जाकर ये रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट होने के बाद ये क्या करते हैं, ये एसिड फॉर्म कर लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड बन जाता है। अब ये कहाँ पर बन गया, ये जाकर क्लाउड फॉर्मेशन हो गया। जब ये एयर में जाकर मिक्स हुआ तो एयर के साथ ये ऊपर चला गया और इसने क्लाउड फॉर्मेशन कर लिया। अब हमारा जो क्लाउड है, क्लाउड में सल्फ्यूरिक एसिड भी है, नाइट्रिक एसिड भी है। दीज एसिड्स ड्रॉप डाउन विथ रेन। अब जब रेन होगी तो रेन के साथ ये एसिड भी गिरेगा, मेकिंग द रेन एसिडिक। इससे हमारा रेन क्या होगा, एसिडिक रेन हो जाएगा। हमारे रेन में ये एसिड्स गिरेंगे। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन, द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड रेन। बेसिक कॉन्सेप्ट, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एयर में मिक्स हो जाएंगे, क्लाउड बन जाएंगे और जब वो रेन के फॉर्म में नीचे आएंगे तो वो भी गिरेंगे, तो एसिड रेन हमारी होगी, एसिडिक होगी। दिस एसिड रेन करोड्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट। ताजमहल का व्हाइट मार्बल यही एसिड क्या कर रहा है, खराब कर रहा है, डिटोरेट कर रहा है, डिस्कलर कर रहा है। द फेनोमेना इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर। आरएमएस में पहले पूछा गया क्वेश्चन, मार्बल कैंसर। सैनिक स्कूल में भी पूछा गया मार्बल कैंसर। व्हाट इज मार्बल कैंसर? डिस्कलरिंग ऑफ व्हाइट मार्बल ड्यू टू द एसिड रेन, ड्यू टू द सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पूछ लिया था एसपीएम क्या है। एसपीएम सॉलिड होता है। पार्टिकुलेट मैटर मतलब दिस इज ऑल्सो अ पोल्यूटेंट। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बुक में लिख दिया, क्वेश्चन में एसपीएम दे दिया था। तो एसपीएम मतलब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, दिस इज सॉलिड, एक्चुअली सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म मतलब थोड़ा सा इसका, इट विल नॉट बी एयर फॉर्म, इट्स नॉट गैसियस फॉर्म। सच एज द सूट पार्टिकल्स, क्या बोलते हैं इनको, सूट पार्टिकल्स। emitted by Mathura oil refinery has contributed towards the yellowing of the marble. So मथुरा ऑयल रिफाइनरी से जो एसपीएम निकले, सूट पार्टिकल्स जो निकले, उसमें एसपीएम मिले हुए थे, इससे जो मार्बल वाइट कलर का था वो येलो होने लगा, येलोइंग होने लगी। और येलो हो जाएगा तो इट्स वेरी, यू नो, इट विल डिसकलर, इट विल लूज इट्स, यू कैन सी हियर। आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि फोटो में थोड़ा सा येलोनेस उसके अंदर आ गया, यू कैन सी इन द पिक्चर। आप पिक्चर में देखिए, एक लाइट येलोनेस आपको दिखाई देगी, स्लाइट एक येलो का एक फ्लेवर आ गया है। उतना वाइट नहीं है, जबकि वाइट मार्बल इज कंप्लीटली वाइट, तो ये थोड़ा सा येलो हो गया। सो लुकिंग एट दिस, द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव द ताजमहल. इट हैज ऑर्डर्ड इंडस्ट्रीज टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल्स लाइक सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फुल फॉर्म है इसका, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीएनजी का फुल फॉर्म एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है कि अब लोग पेट्रोल और डीजल यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सीएनजी यूज करेंगे, एलपीजी यूज करेंगे. मोरओवर द ऑटोमोबाइल्स शुड स्विच ओवर टू अनलेडेड पेट्रोल इन ताज जोन. ताज के आसपास जितने भी गाड़ियां चल रही हैं, टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स चल रहे हैं, उनमें पेट्रोल जो जाएगा वो स्पेशल, कौन सा, अनलेडेड. अनलेडेड मतलब लेड एक मेटल है, वो मेटल नहीं होना चाहिए, अनलेडेड पेट्रोल वो यूज करेंगे. सो दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट. So we know that water can neither be added nor subtracted from the earth and its total volume remains constant. तो जो भी हमारे planet में जितना भी water है उसकी जो total volume है वो constant है. Its abundance, abundance means bountiful, plentiful, बहुत ज़्यादा मात्रा में. Its abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the oceans, the air, the land and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff. तो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि वाटर साइकिल में पहले ओशन का जो पानी है वो वेपर्स के फॉर्म में एयर में जाता है इवेपोरेशन के थ्रू, और रेन के फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वो वापस लैंड पर आता है, और लैंड पर आने के बाद वो वापस रेन वाटर या फ्लोइंग वाटर से रन ऑफ हो जाता है. दिस, एज वी ऑलरेडी नो, इज रेफर टू एज द वाटर साइकिल. बेसिकली दे आर एक्सप्लेनिंग द पॉइंट दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी कांस्टेंट. पानी का जो लेवल है वो सेम रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा. ह्यूमन्स यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. Look at some example. Water for agriculture, industries, generating electricity through reservoirs of dams. These are the other usages. तो water के अलग अलग जो usage हैं वो बताए हुए हैं. Further,
As we know that the increasing population, the rising demand for food and cash crops, increasing urbanization, and rising standard of living, these are the major factors leading to shortages in supply of fresh water, either due to drying up of water sources or water pollution. तो ये जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, फूड की, कैश क्रॉप की डिमांड बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रही है, इसकी वजह से वाटर की शॉर्टेज हो रही है. इसलिए शॉर्टेज हो रही है क्योंकि वाटर का ड्राइंग अप हो रहा है, पानी सूख रहा है, या वाटर पॉल्यूशन हो रहा है. नाउ लेट अस लुक एट द challenges here. Problems of water availability. There is a scarcity. Scarcity means कमी हो जाना. Scarcity of water in many regions of the world. दुनिया के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी की अब कमी होने लग गई है. Most of Africa, West Asia, South Asia, parts of Western United States of America, Northwest Mexico, parts of South America and entire Australia are facing shortages in the fresh water supply. These are the regions we are talking about. Further, countries located in climatic zones, they are most susceptible to droughts. They face great problems of water scarcity. ऐसी countries जो climatic zone पर है, जहाँ पर ड्रॉट की सिचुएशन ज़्यादा बनी रहती है, वहाँ पर हमेशा वाटर की स्कार्सिटी देखने को मिलती है. दस वाटर शॉर्टेज मे बी अ कंसिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन. बताया जा रहा है कि वाटर शॉर्टेज क्यों हो सकता है. अगर प्रेसिपिटेशन मतलब रेन, जो सीजनल रेन होती है और जो एनुअल रेन होती है, अगर उसमें वेरिएशन आ जाए, कम हो जाए, तो इसकी वजह से वाटर का शॉर्टेज हो सकता है. और scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources. दूसरा जो उन्होंने बताया कि अगर हम वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करें, प्रॉपरली यूज़ ना करें और उसका कंटेमिनेशन या पॉल्यूशन करें, तो इससे भी वाटर की स्कार्सिटी बनेगी. Let us talk about the steps to conservation of water resources. Access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world today. आज जो फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट है, this is the biggest challenge we are facing. Steps have to be taken to conserve this dwindling resource. Dwindling का मतलब ऐसी चीज़ जो धीरे धीरे कम हो जाए और बाद में ख़त्म हो जाए. Dwindling, slowly decreasing. सो हमें इसके लिए ये जो हमारा वाटर का जो रिसोर्स है, ये जिस तरह कम होता जा रहा है, इवेंचुअली ये ख़त्म हो जाएगा. तो इसके लिए हमने dwindling वर्ड यूज़ किया है. इवन दो वाटर इज़ अ रीन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़. तो जैसे तो उन्होंने बताया कि वाटर का जो लेवल है कांस्टेंट है, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, उसका एक साइकिल है, वो चलता रहेगा. लेकिन अगर हमने इसका ओवर यूज़ किया और उसे पॉल्यूट किया, तो वो हमारे यूज़ करने के लिए फिट नहीं होगा, अनफिट हो जाएगा. नेक्स्ट, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज. पहला रीजंस बता रहे, अनट्रीटेड या पार्शियली ट्रीटेड सीवेज मतलब जो कचरा है. एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स. एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाने वाले केमिकल्स और इंडस्ट्री से निकलने वाले एफ्लुएंट्स मतलब उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं. इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटामिनेंट्स. हम इनको क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं, ये पानी में मिल जाते हैं, ये कंटामिनेंट्स का काम, पोल्यूटेंट्स का काम करते हैं. दे पॉल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, इंपॉर्टेंट, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स. तो ये वाटर में क्या क्या पॉल्यूशन लेकर आते हैं, नाइट्रेट्स लेकर आते हैं, मेटल्स लेकर आते हैं और पेस्टिसाइड्स लेकर आते हैं. Look at this picture of Yamuna river getting polluted due to sewage. गार्बेज की वजह से, सीवेज की वजह से यमुना रिवर ये पोल्यूट हो चुकी है. A water sprinkler system given in the textbook, we'll discuss about it as we will proceed. Now we're talking about the contaminants. Most of these chemicals are non-biodegradable
एंड दे रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर. नॉन बायोडिग्रेडेबल है मतलब इनको डिकम्पोजिशन का पीरियड बहुत ही लंबा है, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड. और धीरे धीरे ये ह्यूमन बॉडीज में पानी के थ्रू पहुंच जाते हैं. वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज. तो पानी में इनको हम डाल दें इससे पहले इनके ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है, इनको प्रॉपरली ट्रीट करना ज़रूरी होता है. फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर. बता रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर फॉरेस्ट और वेजिटेशन होगा तो वाटर का जो रन ऑफ हो रहा है वो थोड़ा रुकेगा, और जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर जो है, जो सॉइल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, जो एब्जॉर्ब हुआ वाटर है, उसकी भी लेवल हमारी रिप्लेनिश होगी, वापस आएगी. वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ. एक और जो मेथड हम कर सकते हैं सरफेस वाटर के बह जाने का, दैट इज वाटर हार्वेस्टिंग. The canals used for irrigating field should be properly lined to minimize loss of water seepage. तो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर करते समय जब हम इरिगेशन करते हैं तो जो कैनल्स बनाते हैं, जो कैनल हम यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, उनको हम थोड़ा प्रॉपरली लाइन करें जिसकी वजह से वो टूट कर इधर उधर वाटर का सीपेज या वाटर का लॉस ना हो. स्प्रिंकलर्स विच वी शॉ. Sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. So sprinkler is a very effective tool which we can use for saving the water. Point important है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what are the areas or how the sprinklers irrigate the area. They do so by checking water losses through seepage and evaporation. In dry regions with high rates of evaporation, drip और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूजफुल. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस पर भी कि ड्राई रीजन में किस तरह का इरिगेशन मेथड हम यूज़ करेंगे, तो हम वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन या ट्रिकल इरिगेशन यूज़ करेंगे. द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन. तो इस तरह का अगर इरिगेशन हम टेक्निक्स यूज़ करें, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग हम करें, प्रॉपरली अपने कैनल्स को लाइंड करें, स्प्रिंकलर्स को हम यूज़ करें, और इन सारे मेथड्स को अगर हम प्रॉपरली इफेक्टिवली यूटिलाइज करें ड्यूरिंग द इवापोरेशन, तो वाटर को हम काफ़ी हद तक सेव कर पाएंगे. नाउ मूविंग टू द नेचुरल वेजिटेशन. टेक्स्ट बुक का एग्जर्प्ट है. सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन on handicraft. The article in the exhibition were collected from different part of the country. और ये अलग अलग कहीं पर ये लोग एक एग्जीबिशन को अटेंड करने गए हैं, और यहाँ पर ये एग्जीबिशन में क्या देख रहे हैं, दे कैन सी डिफरेंट आर्टिकल्स पिक्ड ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से इनके एग्जीबिशन में अलग अलग आइटम्स आए हैं. मोना picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag. It is made of jute. Do you see these baskets, lampshades, chairs? They are made of canes and bamboo." So basically we are moving towards the vegetation. तो ये अलग अलग तरह की जो प्लांट्स हैं ये उनकी बात कर रहे हैं. Further, they say in the eastern and northeastern humid regions, important, bamboo grows in plenty. Question पूछा जा सकता है, in what type of region the bamboo will grow? Answer is humid regions. And where in India? It in eastern and northeastern part of India. The teacher, further they are talking about a scarf. The teacher explained that this silk is obtained from silkworm that are bred on mulberry leaves. Question पहले पूछा गया है कि silkworm कहाँ पर अपना भोजन लेते हैं, तो वो मलबरी ट्रीज पर पाए जाते हैं. The children understood that plants provide us with many different products that we use in our day-to-day life. तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन उन्होंने बातों बातों में रख दिए हैं. Coming to the natural vegetation. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. तो पहला तो important point है कि natural vegetation कहाँ पर मिलेगा.
तो हमें नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कहाँ पर मिलेगा? बायोस्फीयर में मिलेगा. बायोस्फीयर इज अ जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर एंड एटमॉस्फेयर एयर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन में. In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. Biosphere में जितने भी living beings हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए. And this life supporting system is known as ecosystem. अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है what is ecosystem, लेकिन पूछा जा सकता है. So ecosystem is a biosphere. In the biosphere where all the living beings are interrelated and interdependent for survival, this system is called ecosystem. Vegetation and wildlife are valuable resources. In this diagram, you can see the silkworm on the mulberry tree. Here, a Brahma Kamal. It is a medicinal herb. There are innumerable, means countless uses of plants, and we can add some more as we use them. Wildlife include animals, birds, insects, as well as the aquatic life form, पानी के अंदर हैं जो. They provide us milk, meat, hides and wool. Insects like bees provide us honey. They help in pollination of flowers and have an important role to play as decomposers in the ecosystem. Question बन सकता है that what are the functions of insects? Specifically bee का तो नहीं पूछेंगे, honey है, simple है, but pollination of flowers, this can be the question asked, that insect helps in pollination of flowers. And they also have an important role to play as decomposers. Generally हम समझते हैं कि it is the microorganisms, bacteria, but insects also act as decomposers in the ecosystem. Question बन सकता है. The birds feed on insects and act as a decomposers as well. Bird भी एक तरह के decomposer का ही काम करती है. Vulture, due to its ability to feed on dead life. Next, we know that the sun's rays, they warm the earth surface. sun की जो rays होती हैं, जो sunlight होती है, यही हमारे surface को warm करती है या गर्म करती है. A part of radiation that falls on the earth is absorbed by it. Absorbed by it मतलब absorbed by earth surface, and a part is reflected back into space. You assume it like this. Suppose this is earth. Let's draw the atmosphere of earth. Say this is sun. So the radiations which are coming from sun, the rays which are coming from sun, they come to earth. Earth will absorb some part of this light and the other part it will reflect. तो ये इस तरह से rays थोड़ी सी absorb होकर बाकी reflect हो जाती हैं. Like this, you can see the reflection. Now, where do they go after they get reflected? They get trapped in the atmosphere. You see this yellow atmosphere. In this atmosphere, we have carbon dioxide, water vapors, hydrogen. There are various gases which will trap these reflected rays. ये इस reflected rays को absorb कर लेंगे, trap कर लेंगे atmosphere के अंदर. And this trapped radiation, atmosphere ने ये जो rays को absorb कर लिया, they will further warm the earth. और इसी से हमारा जो atmosphere है वो गर्म होता है. नाइट में जब सन रेज नहीं होते हैं तब भी हमें ठंड नहीं लगती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ने ये सारी लाइट और हीट एब्जॉर्ब कर लिया है, जिससे वो गर्म हो गई है और उसने हमारा एटमॉस्फेयर गर्म रखा है. सो ओवरऑल वी विल फील अ वार्मथ. If you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere,
रिकॉल दैट द सन्स हीट इज अलाउड टू गेट इन बट इज नॉट अलाउड टू गो आउट। बात बता रहे हैं ये ग्रीन हाउस, नर्सरीज को कवर कर दिया जाता है मोस्टली बाय ग्लास, जिसमें सनलाइट अंदर तो आ सकती है पर बाहर नहीं जा सकती, वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है। अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस विल बी अ 4-व्हीलर कार। जब हम अपनी कार को पार्क करके बाहर जाते हैं, सारे डोर्स विंडोज़ लॉक कर देते हैं और बाहर चले जाते हैं, और जब हम थोड़ी देर के बाद वापस आते हैं तो जैसे ही हम कार को ओपन करेंगे तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि सनलाइट कार के अंदर तो आ रही है थ्रू विंडोज़, बट बाहर नहीं निकल पा रही है, इसलिए अंदर जो हीट है वो ट्रैप हो रही है और इसीलिए अंदर का जो एटमॉस्फेयर होगा वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। दैट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। द ट्रैप्ड हीट वार्म्स द ग्रीन हाउस। The trapping of radiations by the Earth's atmosphere is similar। जैसे ग्रीन हाउस का इफेक्ट काम करता है उसी तरह अर्थ का एटमॉस्फेयर भी सिमिलर काम करता है। That is why it is called the greenhouse effect। This trapping of heat by Earth's atmosphere, this is called greenhouse effect। Now without this process life would not have been possible on the earth। अगर ये greenhouse effect ना हो तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो कभी गर्म हो ही नहीं पाएगा, और जैसी रात होगी जब सन चला जाएगा तो हमारा टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। बट बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर ये सन के रेस को दिन में एब्जॉर्ब करके रख लेता है, जिससे रात में भी हमें थोड़ा वार्मथ मिलता रहता है। तो ये हमारे प्लैनेट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ। पर अब इससे एक खतरा बन गया है। खतरा ये बन गया है द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन द एयर इज वन ऑफ द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट। ये कह रहा है कि जो ट्रैपिंग करने का काम करते हैं सनलाइट को, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। सो कार्बन डाइऑक्साइड मेंशन किया हुआ है तो पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन greenhouse gas? Answer is CO2। We know that CO2 is one of the components of air as the role of carbon dioxide in plants. Now they require this for photosynthesis। Its percentage is 0.03% in our atmosphere। और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि ये वाइटल है फॉर द फोटोसिंथेसिस। बट इफ देयर इज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इट एक्ट्स एज अ पॉल्यूटेंट। लेकिन अगर इसकी जो क्वांटिटी है, अभी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है 0.03%, अगर इससे ये ज़्यादा होने लगे तो ये पॉल्यूटेंट बन जाएगी। CO2 इज कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, और मोस्टली इसमें इंटरफेरेंस ह्यूमन एक्टिविटीज़ का है, जिससे कि कंटिन्यूसली हम एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं और इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। एरिया अंडर फॉरेस्ट्स इज डिक्रीजिंग। फॉरेस्ट कवर को हम कम कर रहे हैं। अगर हम फॉरेस्ट कवर को कम करेंगे तो हम इसका मतलब हम वेजिटेशन कम करेंगे, हम प्लांट्स को कम करेंगे। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं, तो अगर प्लांट्स कम हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, तो उसका लेवल जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा। नाउ वी नो दैट प्लांट्स दे कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर फोटोसिंथेसिस एंड दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, so it will be a twin bladed situation. Now plants utilize carbon dioxide for the atmosphere for photosynthesis। प्लांट्स जो हैं वो CO2 को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, देयर बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। तो प्लांट्स का मेजर फंक्शन ये है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन करेंगे। कैसे? उसे वो डिक्रीज करेंगे। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर। तो अगर हमने प्लांट्स जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन कर रहे हैं या रादर कम कर रहे हैं,
अगर हमने उन्हें ख़त्म किया, मतलब अगर हमने डिफॉरेस्टेशन किया, मतलब प्लांट्स को अगर हमने कम किया, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम हो जाएगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूटिलाइजेशन प्लांट्स करते हैं वो उस लेवल पर नहीं होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है एयर में वो बढ़ जाएगी। बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। इस पर क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन आवर एटमॉस्फेयर। अलग अलग ऑप्शंस दे सकते हैं, या फिर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन बोल देंगे कम हो जाएगा, या ऑक्सीजन का कुछ इम्पैक्ट बता देंगे, बट मेजरली it is the carbon dioxide which will increase because the number of trees which consume carbon dioxide will decrease. That is self-explanatory. Human activities thus contribute to the accumulation of carbon dioxide in the atmosphere. तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि इस human activity which is deforestation, जो हमारी एक्टिविटी है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिपोजिशन हो रहा है, जो एक्यूमुलेशन हो रहा है एटमॉस्फेयर में, ये बढ़ रहा है। CO2 ट्रैप्स हीट एंड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप इनटू स्पेस। CO2 प्राइमरी ग्रीन हाउस इफेक्ट है, हीट को ट्रैप कर लेती है और उसे स्पेस में जाने नहीं देती। इसका मतलब वो उसे एटमॉस्फेयर में ही अपने द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। अब CO2 बढ़ेगा तो ज़्यादा हीट ट्रैप करेगा, तो एटमॉस्फेयर ज़्यादा गर्म होगा, और इसकी वजह से हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर और ओवरऑल हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। फ्रॉम दिस टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जितनी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, और ग्लोबल वार्मिंग एज सच भी एक यूनिवर्सल अटेंशन का फिनोमेना है, तो इस कॉन्टेक्स्ट से भी वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उस पर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। Talking about the greenhouse gases, they are methane, nitrous oxide and water vapor. They also contribute towards greenhouse effect. Like carbon dioxide, they are also called greenhouse gases. Global warming has a major concern for governments worldwide. बता रहे हैं कि दुनिया भर के सरकारों के लिए ये सोचने की बात है और एक कंसर्न बन गया। Many countries have reached an agreement to reduce the emission of greenhouse gases. और कई देशों ने मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया है जिसमें वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकेंगे, कम करेंगे। द क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो इज अ सिटी इन जापान, वहाँ पर ये एग्रीमेंट बना था। दिस इज वन सच एग्रीमेंट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू व्हाट? आंसर इज ग्रीन हाउस इफेक्ट and to stop the or reduce the emission of greenhouse gases. ऊपर इन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल है ये भी दिए हुए हैं, टेक्स्ट बुक में है, इनके नाम है स्पेसिफिकली, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर। An increase in Earth's temperature by even as little as 0.5 degree Celsius can have a serious effect. अगर अर्थ का ग्रीन हाउस इफेक्ट कंटिन्यूस रहा और अर्थ का टेम्परेचर उससे बढ़ा तो काफ़ी सीरियस उसके इफेक्ट हो सकते हैं। 0.5 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ा तो इट विल बी अ डेंजर सिचुएशन। द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज हैज स्टार्टेड मेल्टिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लेशियर, जो गंगोत्री ग्लेशियर है हिमालय पे, ये भी अब मेल्ट होने लगा है। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। A few years ago, Delhi was one of the most polluted cities in the world. कुछ साल पहले की बात है कि दिल्ली दुनिया का सबसे ज़्यादा polluted city था. It was being choked by fumes released from automobiles running on diesel and petrol. A decision was taken to switch to fuels like CNG. और दिल्ली के pollution को देखते हुए वहाँ पर इतने जो एटमॉस्फेयर में जो टॉक्सिक गैसेस आ चुकी थी ऑटोमोबाइल्स की वजह से, फैक्ट्रीज़ की वजह से, सो फाइनली सभी ने सीएनजी जो फ्यूल होता है, ये दिल्ली की एक ट्रांसपोर्ट बस है, उस पर स्विच किया। और साथ ही साथ इन्होंने अनलेडेड पेट्रोल का यूज़ शुरू किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है
व्हाट मेजर हैव बीन टेकन अदर देन सीएनजी, तो सीएनजी के अलावा अनलेडेड पेट्रोल को भी यूज़ करना शुरू किया, जिससे एनवायरनमेंट में उतने टॉक्सिक गैसेस रिलीज नहीं होते. दीज मेजर्स हैव रिजल्टेड इन क्लीनर एयर फॉर द सिटी, और इसी की वजह से दिल्ली में अब एयर जो है वो थोड़ी क्लीन हो गई है. यू माइट नो ऑफ सम अदर एग्जाम्पल फ्रॉम योर एरिया रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ एयर पॉल्यूशन. Not a relevant point. The quality of air at various locations is monitored regularly by government and other agencies. अब एयर की जो क्वालिटी है उसको अब मॉनिटर किया जाता है, उस पर देख रेख की जाती है हर एक एरिया में. एंड वी कैन यूज़ दिस डेटा टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन अमंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स. और ये डेटा हम अपने सोसाइटी में, अपने कम्युनिटी में दिखा सकते हैं ताकि लोगों के अंदर एयर पोल्यूशन को लेकर थोड़ी अवेयरनेस आए और वो इसको कंजर्वेशन के लिए इसके काम करें. देयर इज अ नीड टू स्विच ओवर टू अल्टरनेटिव फ्यूल्स. ऑप्शन क्या दिया, क्वेश्चन बन सकता है फॉर एयर पोल्यूशन व्हाट वी शुड डू. सो वी शुड स्विच टू अल्टरनेटिव फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट. हम फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके यूज़ को हटाकर हम अल्टरनेटिव फ्यूल्स हम देख सकते हैं. क्या अल्टरनेटिव बता रहे हैं, ये पहला बता रहे हैं कि हम सोलर एनर्जी का, जो कि आप आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो भी रहा है, सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं. हाइड्रो पावर and wind energy. Small contributions on our part can make a huge difference in the state of the environment. So fossil fuels का यूज़ ना करके हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी को बताया, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनका अगर हम यूज़ करें तो ये काफ़ी बड़ा चेंज आ सकता है. वी कैन प्लांट ट्रीज. डिफॉरेस्टेशन की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे. नर्चर द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड, और जो ऑलरेडी पेड़ लगे हुए हैं उनको सेव करेंगे. वन महोत्सव, when lakhs of trees are planted in July every year. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन महोत्सव कब सेलिब्रेट किया जाता है. कोई स्पेसिफिक इसकी डेट नहीं है, जुलाई के मंथ में ये किया जाता है. पहले ये क्वेश्चन आया है. सो वी कैन प्लांट नंबर ऑफ ट्रीज, लैक्स ऑफ ट्रीज. दिस इज द वन महोत्सव. एंड इफ वी do that, then air will be cleaner, our environment will be better. Speaking about an area where some people were burning dry leaves, अगर आप अपने एरिया में ड्राई लीव्स मतलब सूखे हुए पत्तों को जलाएंगे, they started coughing because the entire area was full of smoke. तो जो हमारे प्लांट्स और ट्रीज के शेडिंग से जो लीव्स गिरते हैं उनको जलाने का जो प्रैक्टिस है उसको वो बता रहे हैं कि दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस बिकॉज इट विल फिल द एंटायर एरिया. सब पूरे एरिया में धुआं धुआं हो जाएगा. सजेस्टिंग इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू पुट देम इन अ कंपोस्ट पिट रादर देन बर्निंग. तो ये आइडिया बता रहे हैं कि हम जो इस तरह की जो ड्राइड लीव्स हैं उन्हें हम ना जलाकर उन्हें हम कंपोस्ट पिट में डाल दें, तो इससे हमें एक मैन्योर भी मिलेगा. क्वेश्चन इस पर भी पूछा जा सकता है कि लीव्स का बेटर हम क्या कर सकते हैं, जलाने के अलावा हम उसे कंपोस्ट पिट में डाल सकते हैं. मूविंग टू द वाटर, वाटर इज बिकमिंग स्कार्स ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन. पानी की भी कमी हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज को भी ज़रूरत है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ सभी में इंक्रीज है. वी हैव मोर पॉपुलेशन, सो वी हैव टू डू मोर एग्रीकल्चर, वी हैव टू डू मोर इंडस्ट्रीज, and all of these places water is critical. You do have also studied how water becomes dirty after we use it for washing clothes, bathing. कैसे हम बता रहे हैं कि पानी का जब हम हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, तो भी पानी गंदा हो जाता है. दिस मीन्स दैट वी आर एडिंग सम मटीरियल्स टू द वाटर विच स्पॉइल इट्स क्वालिटी एंड चेंज इट्स स्मेल एंड कलर. कहने का मतलब ये है कि हम पानी में कुछ ऐसा मिला रहे हैं जिससे मटीरियल, हम कुछ ऐसा पानी में मिला रहे हैं जिससे उसकी क्वालिटी खराब हो रही है, उसकी स्मेल थोड़ी खराब हो रही है, उसका कलर चेंज हो रहा है. व्हेनेवर हार्मफुल सब्सटेंस सच एज सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स, सिल्ट, दे गेट मिक्सड विथ वाटर, द वाटर बिकम्स पोल्यूटेड. तो पानी कब पोल्यूटेड हो जाता है, जब उसमें सीवेज, केमिकल्स जो टॉक्सिक हो, स्लेट, इस तरह की चीज़ें जब हम मिला दें तो पानी पोल्यूट हो जाता है. दीज सब्सटेंस दैट पोल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स. इन सब्सटेंसेस को हम वाटर पोल्यूटेंट्स कहते हैं. In this image here you can see the course of the Ganga river, the national river of India, originates from Gomukh at the Gangotri glacier. It travels Uttarakhand,
Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, and finally goes to Bangladesh, meets Brahmaputra and ends at Bay of Bengal. It sustains North India and East India, and partly Central India also. Millions of people depend on this river for their daily needs and livelihood. गंगा रिवर के सभी ऊपर काफ़ी मतलब लोग भी डिपेंडेंट हैं अपनी डेली नीड्स के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए. बट रिसेंटली WWF, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, they have found that Ganga is one of the 10 most endangered rivers in the world because of the pollution of Ganga. The pollution levels have been rising for many years, and we have reached a stage because the towns, all the towns the river is passing through, the cities through which the river flows, they are throwing large quantities of garbage, untreated sewage, at times dead bodies also, and many other harmful things directly into the river. तो ये जितनी भी सिटीज से ये पास हो रही है, लोग क्या कर रहे हैं, अपना वेस्ट मटेरियल इसमें डाल रहे हैं, जिसकी वजह से रिवर पॉल्यूट हो रही है. और WWF ने इसे एंडेंजर्ड रिवर में डिक्लेयर कर दिया. पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा हो गया है दैट एट सम प्लेसेस दिस रिवर इज डेड, मीन्स देर इज नो aquatic life. Aquatic life cannot survive. Pollution levels are so high. So it is very important to save Ganga. And for saving Ganga, a very important Ganga Action Plan was launched in 1985. This Ganga Action Plan aimed to reduce the pollution levels in the river. तो नदी में जो pollution हो गया है उसे कम करने के लिए 1985 में ये प्लान लॉन्च किया है, पूछा जा सकता है. However, the increasing population and industrialization have already damaged this mighty river beyond repair. तो इसका पॉल्यूशन लेवल कम करना तो हम चाह रहे हैं, पर इस रिवर को ऑलरेडी हमने इतना डैमेज कर दिया है, इतना ज़्यादा पॉल्यूट कर दिया है कि अब वो बियॉन्ड रिपेयर है. किसे रिपेयर करना, ठीक करना, वापस उसी सिचुएशन में लाना इज अ वेरी हरक्यूलियन टास्क. नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव नोन एज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG, इन 2016. क्वेश्चन पूछा जा सकता है. यू कैन सी द लेवल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ गंगा रिवर. दिस इज a stretch of Ganga which is polluted. The Ganga at Kanpur in Uttar Pradesh, UP, has one of the most polluted stretches of the river. इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा रिवर सबसे ज़्यादा कहाँ पर polluted है. कानपुर में. It is one of the most populated towns in UP. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है which is the most populated town of UP. Answer is Kanpur. Now people can be seen bathing, washing clothes, defecating in the river. Other than this, they are throwing garbage, कचरा फेंक रहे हैं, flowers, idols of gods, जो हम इमर्शन करते हैं देवी देवताओं का, god and goddesses, and non-biodegradable polythene bags into the river. लोग इसमें हर तरह की चीज़ें फेंक रहे हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, कचरे, फूल, और सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसे पॉलीथीन बैग्स जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब इनका जो डिग्रेडेशन का टाइम है इट इज़ मोर देन 500-600 ईयर्स, तो उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है. एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज कंपेरेटिवली स्मॉल एंड द फ्लो ऑफ रिवर इज़ वेरी स्लो. कानपुर में रिवर का जो फ्लो है बहुत कम है और रिवर भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं है. इन एडिशन कानपुर हैज़ मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज़, और इसके ऊपर 5000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं. तो इससे क्या क्या इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर?
fertilizer industry, all these chemicals, detergent, leather, paint, these industrial units discharge toxic chemicals waste into the river. और ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये रिवर में टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करती हैं. और कई ऐसी भी इंडस्ट्रीज हैं, मैनी इंडस्ट्रीज दे डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स कॉजिंग द पॉल्यूशन ऑफ वाटर. और इसी से पॉल्यूशन ऑफ वाटर हो रहा है. क्या क्या एग्जांपल्स हैं? ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल, sugar mills, they all are causing water pollution. You can see in this picture here, this river is completely polluted because of the industrial waste discharge. तो क्या क्या है इसके? ऑयल रिफाइनरी है, पेपर फैक्ट्री है, टेक्सटाइल है, शुगर मिल है एंड केमिकल फैक्ट्रीज, जो हमने डिटर्जेंट और सारे केमिकल्स की बात की. These industries can cause chemical contamination of water. Contamination मतलब उसे pollute करना, तो उसका chemical उसमें मिक्स हो रहे हैं. The chemicals released include, क्या क्या chemicals release हो रहे हैं? क्वेश्चन बन सकता है. Arsenic, lead and fluoride, which lead to toxicity in plants and animals. तो इससे plants और animals में toxicity होती है, जहर फैलता है. Arsenic, lead, fluorides. There are regulations to prevent this. Industries are supposed to treat the waste produced before discharging it into the waters, but quite often the rules are not followed. तो ये इंडस्ट्रीज जब सेटअप की गई थी तो उन्हें गाइडलाइंस दिए गए थे कि वाटर को कैसे डिस्चार्ज करना है, तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट करना होगा, पर इन रूल्स का डेडिकेटेडली फॉलो, रिलीजियसली फॉलो नहीं होता है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो रहा है. द सॉइल इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इम्प्योर वाटर. अगर पानी गंदा होगा तो सॉइल भी अफेक्ट होगी, उसकी क्वालिटी खराब होगी. कॉजिंग चेंजेस इन एसिडिटी, ग्रोथ ऑफ वॉर्म्स. वॉर्म्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल, ऑक्सीजन लेकर आते हैं, डिकम्पोजिंग का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं. तो सॉइल की एसिडिटी चेंज हो रही है, वाटर अगर पोल्यूट हो रहा है तो वॉर्म्स वहाँ पर नहीं आ रहे हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स. और इसके अलावा जो हम पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, वीडिसाइड्स डाल रहे हैं क्रॉप्स के प्रोटेक्शन के लिए. However, all these chemicals they dissolve in water and are washed into water bodies from the fields. बताया जा रहा है कि जितने भी केमिकल्स हम पानी में डाल रहे हैं ये फील्ड से बह के निकल जाती हैं. They also seep into the ground to pollute the groundwater. और ये धीरे धीरे जहाँ पर भी आप इन केमिकल्स को यूज़ करेंगे, धीरे धीरे ये वहाँ के ग्राउंड वाटर में जाकर मिल जाएंगे. आगे बताया जा रहा है कि the ponds which look green from a distance because they have a lot of algae growing in them. This is caused by excessive quantities of chemicals which get washed from the fields. तो ये जो हमें हरे हरे पॉन्ड्स दिखाई देते हैं ये बहुत ज़्यादा केमिकल्स की वजह से हैं. These act as nutrients for algae to flourish. तो जहाँ पर भी आपको पॉन्ड्स में या लेक्स के आसपास बहुत ज़्यादा एल्गे दिखें, आप समझ जाइए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा केमिकल्स प्रेजेंट हैं. और इन्हीं केमिकल्स की वजह से यहाँ पर ये एल्गे ग्रो हुए हैं. ये एल्गे इन न्यूट्रिएंट्स को, ये जो केमिकल्स आए हैं ये केमिकल्स एल्गे के लिए एक न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करते हैं, तो ये उन पर थ्राइव करता है, उन्हें कंज्यूम करते हैं. वंस दीज एल्गे डाई दे सर्व एज फूड फॉर डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया. और जब ये एल्गे मर जाते हैं तो ये बैक्टीरिया के लिए एक फूड का काम करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया एज अ डिकम्पोजर काम करता है. A lot of oxygen in the water body gets used up. इस प्रोसेस में उस लेक में या उस पॉन्ड में जो भी ऑक्सीजन है वो यूज हो जाता है. दिस रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल विच में किल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. अब अगर पॉन्ड का और लेक का ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो गया तो उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, और अगर उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो इस रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल पर
जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जब एक्सेसिव केमिकल्स की यूज से ज़्यादा ब्लू ग्रीन एल्गे कहीं पर ग्रो हो जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड यूट्रॉफिकेशन। Sometimes the untreated sewage is thrown directly into rivers. It contains food wastes, detergents, microorganisms. कभी कभी जो कचरा होता है अनट्रीटेड उसे भी हम डायरेक्टली रिवर में फेंक देते हैं, जिसमें खाना है, डिटर्जेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फर्दर दे आर टॉकिंग दैट कैन ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड बाय सीवेज। Let us see. Water contaminated with sewage may contain bacteria. ऐसा पानी जिसमें सीवेज है उसके अंदर कई सारे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंगाई हैं, पैरासाइट्स हैं, which cause diseases like cholera, typhoid and jaundice. बताएं कि ऐसा पानी जो सीवेज वाला जो पानी है इसके अंदर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिससे हमें ये सारी बीमारियां हो सकती है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फीसिस ऑफ मैमल्स आर इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर। फीसिस में जो हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट है जो हम रिमूव करते हैं, उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्वालिटी ऑफ वाटर को इंडिकेट करते हैं, जो क्वालिटी ऑफ वाटर बताते हैं कि कोई पानी कैसा है। If water has these bacteria, it means that it has been contaminated by fecal matter. अगर पानी में ऐसे बैक्टीरिया मिले, इसका मतलब पानी में फीकल मैटर है, फीसिस है। If such water is used by us, it can cause various infections. यहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि ह्यूमंस, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस के फीसिस में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो ये बताते हैं कि ये पानी साफ़ है या नहीं है, उसकी क्वालिटी बताते हैं। तो अगर हमने कोई वाटर का सैंपल लिया और चेक किया, अगर ये बैक्टीरिया पाए गए, फीसिस वाले बैक्टीरिया, इसका मतलब ये पानी ठीक नहीं है। और अगर ये पानी ठीक नहीं है और अगर हमने उसे यूज़ किया तो हमें अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले क्वेश्चन पूछा गया है, हॉट वाटर कैन ऑल्सो बी अ पॉल्यूटेंट। Yes, hot water is usually a water from power plants and industries. Industries से जो पानी निकलता है, बॉयलर्स वगैरह से, वो गर्म पानी होता है, ये भी एक पॉल्यूटेंट है। कैसे समझते हैं? It is released into the rivers. It raises the temperature of the water body. इसे आप नदी में छोड़ेंगे तो ये नदी का टेम्परेचर, जहाँ पर भी ये जाएगा वहाँ उसका टेम्परेचर ये थोड़ा बढ़ा देगा। एडवर्सली अफेक्टिंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन इट। और इसकी वजह से जो टेम्परेचर बढ़ेगा उससे वहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स रह रहे हैं उनको ये अफेक्ट करेगा। सो हॉट वाटर इज ऑल्सो अ पोल्यूटेंट क्योंकि वो उसके बिहेवियर को चेंज कर रहा है, उसके टेम्परेचर को चेंज कर रहा है, एक्वेटिक इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। वाटर विच लुक्स क्लीन मे स्टिल हैव डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज। कई बार ऐसा होता है कि पानी दिखता साफ है लेकिन उसमें कई छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इम्प्योरिटीज होती हैं जो डिजॉल्व होती हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्यूरिफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। तो पानी जब भी हम पिएं उसे हम हमेशा प्यूरिफाई करें। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग, द मोस्ट कॉमन प्रोसेस, बॉइलिंग से हम उसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। वाटर विच इज सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। पहले क्वेश्चन पूछा गया, आगे चांसेस कम है, कॉमन हो गया है टर्म। जो ऐसा वाटर, पोर्टेबल वाटर क्या होता है? ऐसा वाटर जो पीने के लिए सही है, फिट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें बहुत ही मिनिमम है, वो थोड़े बहुत तो हर जगह रहते ही है। वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हेल्प टू क्लीन वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। बताया जा रहा है कि कई फिजिकल प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेसेस बनाए गए हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जिससे हम पानी को क्लीन करते हैं और उसके बाद हम उसको वाटर बॉडीज जैसे रिवर है, पॉन्ड्स है, उसमें रिलीज करेंगे। तो डायरेक्ट हम
वाटर को भी रिलीज नहीं करेंगे। सिमिलरली म्युनिसिपल बॉडीज ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू हाउस होल्ड। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं हमारे, वो भी पानी हाउस होल्ड में सप्लाई करते हैं, उससे पहले वो उसे ट्रीट करते हैं। 25% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड की 25% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। Now, how to make the water safe for drinking? We have already seen how water is filtered. This is a physical method of removing impurities. A popular household filter is a candle type filter. तो सबसे पहले हम filtration कर सकते हैं उसका, candle type filter होते हैं, घर में यूज़ किए जाते हैं, उससे हम वाटर फिल्टर कर सकते हैं। मैनी हाउस होल्ड यूज़ बॉइलिंग एज अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। कई ऐसे हाउस होल्ड हैं जहाँ पर पानी को हम बॉइल करके पीते हैं। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। बॉइलिंग से जो जर्म्स हैं मर जाते हैं। क्लोरीनेशन इज अ कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्यूरिफाइंग वाटर। दूसरा एक और जो मेथड है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लोरीनेशन। इट इज डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर। पानी में हम क्या मिला देते हैं? ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं। उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जो जर्म्स हैं, दे गेट किल्ड। क्लोरीनेशन क्वेश्चन बन सकता है। We must be cautious. We should not use more chlorine tablets than specified. क्लोरीन के बारे में भी बात की जा रही है कि रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। Have to be careful, otherwise it can also have some harmful effects. Laws for industrial units should be strictly implemented so that the polluted water is not disposed of directly into rivers and lakes. इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात की रही है, जो कैजुअल अप्रोच उनका है वाटर को डिस्पोज करने का रिवर्स में, लेक्स में, उसके लिए जो लॉज हैं वो थोड़े स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करने चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज। जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को इंस्टॉल करना चाहिए। एट अवर इंडिविजुअल लेवल वी शुड कॉन्शियसली सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट इट। हमें सोसाइटी लेवल पर भी, कम्युनिटी लेवल पर भी पानी को सेव करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट टर्म है तीनों, 3 R's: रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। पहले तो उसका यूज़ हम कम करें, जितना पॉसिबल हो रीयूज़ करें और उसे रिसाइकिल करने की कोशिश करें। दैट शुड बी आवर मंत्रा। रीयूजिंग वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड फॉर आवर अदर हाउस होल्ड टास्क। फॉर एग्जाम्पल, वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स मे बी यूज टू वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन। जो सब्जियों को धोने के लिए, जो बाजार से सब्जियां हम लाते हैं, धोते हैं, उस पानी का यूज़ हम अपना जो गार्डन है वहाँ पर उन पेड़ों में हम डालकर यूज़ कर सकते हैं। पॉल्यूशन इज़ नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फिनोमेना। पॉल्यूशन अब कोई बहुत दूर की बात नहीं रहेगी। इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लाइफ। जो हम बिगिनिंग में बात कर रहे थे सेशन के, कि हमारी डेली लाइफ को अब अफेक्ट कर रहा है। अनलेस वी ऑल रियलाइज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्ट यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस, द वेरी सर्वाइवल ऑफ आवर प्लानट इज़ इन डेंजर। अगर हमने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया, अगर हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ नहीं किया, तो हमारा सर्वाइवल, हमारे प्लैनेट का सर्वाइवल जो है वो खतरे में आ जाएगा। सो वी हैव टू यूज मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच। वाइल ब्रशिंग योर टीथ, लीविंग द टैप रनिंग में वेस्ट सेवरल लीटर्स ऑफ वाटर। जब हम ब्रश करते हैं तो हम नल चला के छोड़ देते हैं, जिससे भी कई लीटर्स पानी बह जाता है। अ टैप दैट ड्रिप्स वंस एवरी सेकेंड वेस्ट्स अ फ्यू थाउजेंड लीटर्स फॉर वाटर एवरी ईयर। तो एक ऐसा नल जिसमें से एक अगर ड्रॉप करके भी पानी गिर रहा है और वो गिरता ही जा रहा है, तो कुछ 1000 लीटर पानी हर एक साल वहां से वेस्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन इससे आपको जरूर पूछा जा सकता है। एयर पॉल्यूशन, इट इज द कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय इम्प्योरिटीज विच मे हैव हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द नॉन लिविंग components. Pollutants are the substances which contaminate air and water. Carbon monoxide, nitrogen oxides, carbon dioxide, methane and sulfur dioxide are the major pollutants of air. Summarizing what we have done in this session. Further, the greenhouse gases, increasing level of greenhouse gases like carbon monoxide, CO is carbon monoxide, are leading to global warming. यहाँ पर होना चाहिए carbon dioxide. Water pollution is the contamination of water by substances harmful to life. इसके लिए sewage, agricultural chemicals, industrial waste are some of the major contaminants.
Water, which we find for drinking, is known as potable water. We are just summarizing whatever we have done. Water is a precious natural resource and we must learn to conserve it. This is a picture of a water treatment plant. Water will be sent to different channels. The chapter will hold one question. Please revise it.